Hello everyone, Namaskar. Welcome to your channel Engineering Mathematics Tutorial, and today we will start a new topic. The name of the topic is Laplace transformation. Yes, this is very important topic. Laplace transformation is very important topic for all engineers and scientists. So the Laplace transform is a very versatile tool to the engineers and scientists. It is a very versatile tool. Versatile tool means what? A very complicated question. If this can't be integrated by normal method, that is substitution method or by parts method or partial fraction method, then we apply Laplace transform of this function or integration. Clear? So Laplace transformation is what? Laplace transformation, integration is a tool, differentiation is a tool. Just like that, Laplace transformation is a tool. And via using this tool, we can find the solution of any complicated question or any complicated function. So Laplace transformation, क्लियर. जैसे इंजीनियर्स के लिए रेंज का जरूरत पड़ता है ना, उसी तरह से मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है? जैसे इंटीग्रेशन एक टूल है, डिफरेंशिएशन एक टूल है, जस्ट लाइक दैट योर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ टूल टू इंटीग्रेट द फंक्शन. इज इट टू फाइंडिंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम involving homogeneous or non-homogeneous cases. In partial fraction, we use Laplace transformation. So Laplace transformation is a tool to finding the complicated mathematical problem. Clear? So here, I have written here that the Laplace transform is a very versatile tool to the engineer and scientist. It enables us to find solution of initial value problems involving homogeneous and non-homogeneous equation. If we have homogeneous equation or non-homogeneous equation, then we can find the initial value problem. Clear? Initial value problem. Initial value problem in the syllabus of Polytechnic, you don't need to study about initial value problem, but initial value problem is heat problem, wave problem. In BTech, you have to read initial value problem. So recently, we just want to know that what is Laplace transformation, and Laplace transformation is nothing else. It's just a tool to finding the solution of some complicated question. So definition of Laplace transformation. What is definition of Laplace transformation? What is Laplace transform? So if let ft be a given function defined for all positive value of t, let us consider ft be a given function. ft कोई given function है जो कि defined है सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, t के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए. t के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए मतलब तो आप समझ ही गए होंगे that the value of t is greater than 0. Greater than 0 means what? T is greater than 0 but not equal to 0, because only mention that positive value of t. Clear? Here written positive value of t. Positive value of t means what? Positive value of t means the value of t is greater than 0. Clear? So then Laplace transformation of ft is defined as the function of s. मीन्स जब हम लिख सकते हैं द ft बी अ गिवन फंक्शन. ft कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए t के. दैट इज जो हमारा t का वैल्यू है, 0 क्या है? पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? अगर हम लोग -0 भी लिखते हैं तो -0 का वैल्यू क्या होता है? +0 होता है. सो वी कैन राइट हेयर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. देन लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft. लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft क्या होता है? मतलब ft का जब हम करेंगे लैप्लेस, ft मीन्स व्हाट? फंक्शन ऑफ t. एक फंक्शन ऑफ t का कोई भी फंक्शन है और इसका आप कर रहे हो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. तो इसका जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो जो आफ्टर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म द ft फंक्शन इज कन्वर्टेड इनटू द फंक्शन ऑफ s. मीन्स व्हाट? इट बिकम fs. ft का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करते हैं
तो जो फंक्शन कन्वर्ट होता है वो फंक्शन आपका एस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से देखते हैं किस तरीके से। एल ऑफ एफ टी, एल ऑफ एफ टी मीन्स वॉट? लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एस। और फंक्शन ऑफ एस का मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 to इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा, एल एफ टी का मतलब क्या होता है? एल एफ टी यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी मीन्स इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग 0 to इंफिनिटी। 0 to इंफिनिटी मतलब क्या? तो आप समझ ही रहे हो, 0 to इंफिनिटी का मतलब है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ओनली। वी स्टार्टेड फ्रॉम 0 and ended at infinity means we are talking about the integration involve for all positive integers and for all positive value। and Laplace transform का ये प्रॉपर्टी होता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई भी फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस हो और साथ ही वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में हो। अब बात ये उठता है पीस वाइज कंटिन्यूअस मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन? सो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब है आप एक कोई भी इंटरवल लो, सपोज हम 0 to 10 लेते हैं इंटरवल, ठीक है, एंड उसको हम फर्दर सब इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं। लाइक 0 to 10 का जो पूरा इंटरवल है वी कैन ब्रेक इट इनटू सम सब इंटरवल्स, दैट इज we are taking intervals like 0 to 1, then 1 to 2, then 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5 and so on, and then 9 to 10. So this function is continuous in all the sub intervals. Means 0 to 1 it is 0 to 1 it is continuous. When we are talking about 1 to 2 then also it is continuous in this interval. When we are talking about 9 to 10 then it is continuous in the interval 9 to 10. Clear? So Laplace transform of ft become the function of s, मतलब t का Laplace transform कर रहे हैं। आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये। आप t का Laplace transform कर रहे हो और आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इट बिकम द फंक्शन ऑफ s। ये किसका फंक्शन बन जा रहा है? s का फंक्शन बन जा रहा है, ठीक है। अब t का ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, नॉर्मली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या पाते हैं? हम लोग नॉर्मली डिफरेंशिएट करते हैं तो व्हाट विल वी गेट? वी गेट व्हाट? इफ t का फंक्शन है देन आफ्टर इंटीग्रेशन वो t का ही फंक्शन रहता है। अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो t का फंक्शन है, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वो t का ही फंक्शन रहता है, रिमेन्स द फंक्शन ऑफ t। If we differentiate a function of t, then after differentiation it remains the function of t। वो t का ही फंक्शन रहता है। अगर हम s का करेंगे तो वो s का ही रहेगा। बट आप यहाँ देख पा रहे हो कि t का फंक्शन है और उसका आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है s का फंक्शन में, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस fs? सो दिस fs इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग 0 to infinity e to the power minus st ft dt। क्लियर? आप इस फॉर्मूला को एक बार अच्छे से देख लो और जब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन, कुछ एलिमेंट्री फंक्शन का हम लोग जो बेसिक फंक्शन का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है वो हम लोग सीखते हैं। यूनिट इंपल्स फंक्शन, यूनिट इंपल्स फंक्शन आप डबल ट्रिपल ई वाले स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट इंपल्स फंक्शन किसको बोलते हैं? तो यूनिट इंपल्स फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं डेल टी से, ठीक है। और डेल टी का वैल्यू क्या होता है? 0 या इन्फिनिटी। 0 कब होता है? जब टी का वैल्यू 0 नहीं होता है तब यूनिट इंपल्स फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, और अगर टी का वैल्यू 0 आ गया तो ये यूनिट इंपल्स फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। मतलब यूनिट इंपल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो जिसका वैल्यू ईदर 0 और इन्फिनिटी। 0 कब होता है? जब टाइम 0 ना हो। टी मतलब क्या? टाइम। जब टाइम 0 ना हो तो उस टाइम पे हमारा ये फंक्शन 0 होता है, और जब टाइम 0 हो जाए तो उस टाइम पे ये हमारा फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन को हम लोग किस तरीके से इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो एल ऑफ डेल टी इक्वल टू 0 to इंफिनिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारा? याद करिए, e to the power minus st ft। तो यहाँ फंक्शन क्या है? डेल टी dt। अब आपका जो डेल टी है, ठीक है, अब आपका जो डेल टी है तो आपका डेल टी क्या है? तो डेल टी का आपको पता ही है 2 वैल्यू है, एक 0 और एक इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को तो हम लोग डायरेक्ट नहीं दिखाते हैं, तो इन्फिनिटी जब भी रहता है तो उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से, दैट लिमिट t टेंस टू 0। चूंकि इसका 2 वैल्यू है ना, एक बार 0 है और एक बार इन्फिनिटी है,
ठीक है, इसका दो वैल्यू है, एक बार 0 है और एक बार इन्फिनिटी है। तो हम लोग इन्फिनिटी तो कोई कंसिडर कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग 0 को कंसिडर करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 0 ले ले तो ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तब तो हम लोग इसको फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका दो वैल्यू है ना, 0 और इन्फिनिटी। 0 लेने से क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू, होल वैल्यू बिकम 0, और अगर होल वैल्यू बिकम 0 हो जाता है तो फिर तो हम लोग इसको आगे ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते इसका काम। ठीक है, और अगर इन्फिनिटी लेते हैं तो हम बोल सकते हैं दिस डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फिर क्या करें हम, तो हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि लिमिट t टेंड्स टू 0 एंड दिस होल, तो दिस होल मीन्स व्हाट, e टू द पावर माइनस एस टी डेल टी। ठीक है, सो e टू द पावर माइनस एस टी एंड डेल टी, क्लियर। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, तो t टेंड्स टू 0, e टू द पावर माइनस एस टी। अगर हम इस डेल टी को छोड़ देते हैं तो ये हमारा e टू द पावर माइनस एस टी यानी कि e टू द पावर माइनस एस इंटू 0 यानी e टू द पावर 0, तो e टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, और ये आपका डेल टी है, नाम ही है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, तो इसका ये वैल्यू मैक्सिमम देता है कितना, 1, तो 1 इंटू 1 कुल मिला के 1। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, 1। क्लियर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन, ये हमारा था यूनिट इम्पल्स फंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। सो यूनिट स्टेप फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, तो यूनिट स्टेप फंक्शन को हम लोग दिखाते हैं यूटी से, और यूटी का जो होता है दो वैल्यू होता है, एक बार 1 होता है और एक वैल्यू 0 होता है। 1 कब होता है, जब t का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, मतलब t का वैल्यू जब भी पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, t का वैल्यू जब भी पॉजिटिव हो उस टाइम पे हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, और t का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उस टाइम पे हमारा ut का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर। तो हमारा ut का दो वैल्यू होता है, 1 और 0। 1 कब होता है, जब t का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, और 0 कब होता है, जब t का वैल्यू 0 से लेस देन हो। ठीक है, तो अब हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें निकालना है L ऑफ ut निकालना है। ठीक है, L ऑफ ut निकालना है। तो L ऑफ ut का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है हमारा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो एफ टी का मतलब क्या है, तो एफ टी का मतलब है यू टी डी टी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, जब ये नेगेटिव फंक्शन है तब तो लैप्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि हम लोग का लैप्लेस का जो स्टार्टिंग डेफिनेशन था वही क्या था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड फॉर t एंड t इज ग्रेटर देन 0, और इंटीग्रल वैल्यू और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 2, t के पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो डिफाइन करता है। तो e टू द पावर माइनस एस टी यू टी डी टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो इसके प्लेस पे आप 1 रखो। तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, दो वैल्यू है ना, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 रख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं 1 इतना डी टी। सो दिस इज इक्वल दिस इंटू दिस, यानी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इंटू दिस यानी कि ई टू द पावर माइनस एस टी, आप इसको इंटीग्रेट करो, ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर एल ऑफ यू टी इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, तो एल ऑफ यू टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एस टी का ई टू द पावर माइनस एस टी बाय माइनस एस। ठीक है, कहाँ से कहाँ, 0 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज इक्वल्स टू, जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ई टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस एस। देन लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस देके, तो ये हमारा ई टू द पावर माइनस एस इंटू 0 बाय माइनस एस। क्लियर। सो पावर ऑफ एनीथिंग इज माइनस इन्फिनिटी, देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, इट्स 0, तो 0 बाय माइनस एस मीन्स 0, देन माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस एस इंटू 0 मीन्स 0 बाय एस। दिस इज इक्वल टू 0, लीव दिस 0 प्लस दिस, यानी कि e टू द पावर 0 मीन्स 1 बाय एस। सो देयरफॉर
Laplace transform of unit impulse function is what? It's 1 by s. Clear? So Laplace transform of unit impulse function 1 by s. Clear? Next, exponential function. What will be the Laplace transform of exponential function? So exponential function means what? Means our ft is equals to e to the power something at. Then Laplace transform of e to the power at is equals to what? E to the power minus st into ft. And what will be the value of ft? It's e to the power at into dt, integration 0 to infinity. So it's e to the power, base are same, base same है, then power must be added. ठीक है? So it's minus st plus at dt 0 to infinity. Clear? So it become what? E to the power minus s plus it, while t taking common, t is taking common. So minus s plus a t dt 0 to infinity. So this is equals to e to the power minus s plus a into t by minus s plus a 0 to infinity. So this is equals to, again here we are taking common minus. Why we are taking common minus? Because it is infinity. If we direct put infinity, then power of anything if infinity, then whole value become infinity. But if minus infinity will be the power, then the value of this becomes zero. So we will try to convert it into negative function. So e to the power minus s minus a into t by minus s plus a 0 to infinity. Now putting upper limit and lower limit. So after putting this, it's e to the power minus s minus a into infinity, means whole in minus infinity by minus s plus a, then put lower limit. So after taking a minus sign, then we will put a lower limit, we know it. So e to the power minus s minus a into 0 by minus s plus a. So this is equals to, it become what? E to the power minus infinity means 0, so 0 by anything is 0 minus e to the power minus this into 0 means e to the power 0 upon, if we are taking minus common, then we get it's s minus a. So 0 leave 0, minus plus, e to the power 0 means 1 by s minus a and minus plus. So L of e to the power at means Laplace transform of exponential function is what? Exponential function is what? It's 1 by s minus a. Okay, if I'll give a question to you that what is the Laplace transform of e to the power 2t, then what will you say? What is the Laplace transform of e to the power 2t? So you know very well that Laplace transform of e to the power at is equals to 1 by s minus a. And here is the question that e to the power minus 2t, sorry, e to the power 2t. So e to the power 2t is what? 1 by s minus a. And what will be the value of a? What is the value of a here? It's 2. So here 2. Clear? If I am giving a question, Laplace transform of e to the power minus 5t, then you must have to watch that what is the, you must have to check that what is the value of a.
ए का वैल्यू क्या है आपको सबसे पहले ये चेक करना। तो ए का वैल्यू क्या है, -5 है। क्या है, क्या वैल्यू, -5 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ए। तो ए का वैल्यू क्या है, -5, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/s + 5। आंसर क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ना sin t, cos t, साइन हाइपरबॉलिक, कॉस हाइपरबॉलिक, इन सब फंक्शंस का मैं आप लोगों को सिखाऊंगी लैप्लेस। ठीक है, तब तक आप लोग इस पूरे को पढ़िए, समझिए। ये बेसिक कंसेप्ट था लैप्लेस का। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।